یہ سوال کیتا جا رہا ہے، پھر رپیٹ کر دینا۔ حضور اتنی چنڈیاں جشن چراغاں لائٹاں روٹا سجا چھڑ دیو، نعرے مار دیو، ریلیاں کٹ دیو، جلوس کٹ دیو، یہ حضور دے زمانے کیسے؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں مولوی اے زمانہ تیری پیو دا ہے؟ نہیں چس نہیں جلائی، چس نہیں جلائی۔ میں پھر جملہ رپیٹ کر دینا، زندگی دا کوئی پتہ نہیں کتنے موک جائے۔ چس تو بغیر زندگی بھی نہیں، چس ہو تو ہی ہوتی جدو اندر چس ہوئے۔ پھر سن حضور یہ جلسے جلوس جھنڈیاں لائٹن نوران تم کمے بجلی خرچ کر دے ہو، نعرے مار دے ہو، اے پوچھنا چاہنے ہاں اے نبی دے زمانے چاہسی اے زمانہ تیرے پیو دا ہے؟ السلام خدا کے لاڈلے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سارے پڑھا پڑھا ٹھیک ہو سو اور خیریت لال سو۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں وسیم لیاقت، تساں تکنے پہ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج وسیم لیاقت ویلوگس۔ آج یہ جڑی ولاگنگ ہے وہ گنچور میلاد ہے، وہ پڑھا پڑھا کی ویو کراساں۔ امید ہے سارے پڑھا پڑھا کی آج دی ویڈیو جڑی ہے پسند ہو سی، اور ہمارے چینل کی زیادہ زیادہ سپورٹ کرو، اور اس کی اگر کوئی نیو بندہ آشنا تو بیل نہیں گھنٹی لازمی آن کریو۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد في مقام ثاني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہاں پر ہم تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی آپ سماعت فرما لیں۔ ابھی محفل کا تقریباً آغاز ہے، ہم نے ہمارے مہمان نعت خوان بھی تشریف فرمائے، انہیں بھی سننا ہے۔ ہمارے مہمان خطیب صاحب بھی تشریف فرما ہے، چند لمحوں کے بعد ہماری اس بزم کی زینت بن جائیں گے، انہیں بھی سماعت فرمانا ہے۔ میں آپ کا ایک ذہن بنا کر اجازت چاہوں گا۔ ہم یہاں اپنے قیمتی لمحات میں سے چند لمحات نکال کر یہاں پر آئے۔ ویسے دنیا تو اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے کہ صبح ہوتی ہے تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم فلاں 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 کام کریں گے، شام ہو جاتی ہے پھر بھی ہمارے ذہن میں کام باقی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ ہم اس ہمارے روح سے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جب جائے گا تو پھر بھی اس کی یہ خواہشات جو ہیں یہ باقی رہیں گی۔ وہ یہ کہے گا کہ میرے فلاں 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 کام رہتے تھے، ابھی میں جا رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے، وقت نکالا تشریف لائے یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، یعنی درود شریف کوئی بھی کر لیں، اللہم صلی، جو نماز والا درود شریف ہے وہ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا وہ پڑھیں، جو درود شریف آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا، فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ بندہ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرا نام نامی اسم گرامی سنے اور پھر مجھ پر درود نہ پڑے، فرمایا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جبریل امین نے آ کر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک دیکھیں ہمارے جناب بزرگ حاجی کرامت صاحب اور ان کے بیٹوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہر سال کی طرح
इस साल भी ये बज़म सजाई, हमें दावत दी, हम तशरीफ लाए। इनकी मेहरबानी है कि हमें नेकियां कमाने का मौका दिया, तो हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ लेके जाए। और लेके क्या जाएंगे? अपने नामा आमाल में बेशुमार नेकियां लेके जाए। और ये नेकियां कैसे मिलेंगी? एक तो बात लंबी हो जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जुमे के दिन घर से गुस्ल करके नेक कपड़े, ने से मुराद साफ सुथरे कपड़े वो पहन के खुशबू लगा के मस्जिद में पहले आता है, और फिर जो शख्स वाज़ और नसीहत करने वाला है, यानी खुतबा देने वाला शख्स, मैं उसके पास बैठकर वो गुफ्तगू सुनता है, सुनकर उस पर फिर अमल की कोशिश करता है, फिर मैं उस बंदे के पिछले जुमे से लेकर इस जुमे तक के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जिस बात की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ वो जरा तवज्जो से सुननी है। और फिर फरमाया कि वो दूसरा बंदा जो पहले आए लेकिन खुतबा तवज्जो से न सुने, ये बातें जो कही जा रही हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तारीफें की जा रही हैं, और उसे तवज्जो से ना सुनना भी एक गुनाह है। इन्हें तवज्जो से ना सुनना भी एक गुनाह है। मिसाल देकर मैं अपने मौजू की तरफ जाऊंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज जो है, जो 5 वक्त हम पढ़ते हैं, इस नमाज को नियत करके हम क़याम करते हैं। क़याम, रुकू, सुजूद, 2 रकात फर्ज जो है, फर्ज 4 रकात जोर के वो 2 फर्ज पढ़ के हम जब बैठते हैं तो तशहुद में हम तशहुद पढ़ते अब तो हुआ रसूल पर जाकर हमने खड़ा होना है। और यहाँ पर अगर किसी ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो उस पर सजदा साफ वाजिब हो जाता है। इधर तो अल्लाह फरमा रहा है मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, ईमान वालों तुम भी पढ़ो, हुक्म दे रहा है ना अल्लाह ताला। उधर सरकार फरमा रहे हैं जिसने पढ़ा क़यामत के दिन मैं और वो बंदा इकट्ठे होंगे। और फिर फरमाया जो बंदा मुझ पर दुरूद पाक ज्यादा पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता जन्नत का रास्ता भूल जाएगा, पढ़ने वाला जन्नत में चला जाएगा। इधर सजदा साहब क्यों वाजिब हो रहा है? बड़ी काबिल तवज्जो बात है। क्यों सजदा साहब वाजिब हो रहा है? जहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि बेतिहानी से सरकार पर दुरूद पढ़ा, इसलिए सजदा साहब वाजिब हो गया। तवज्जो की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है। यहाँ पर आए हैं तवज्जो से बैठे हैं। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद वाली आयत पढ़ी जाए तो मोमिनीन का ये शेमा हुआ करता है कि वो मोहब्बत के साथ सरकार पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। जिस तरह आपने और आपने यहाँ मिलकर दुरूद पढ़ा, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़ा रसूल के सामने हमें वहाँ पर दुरूद ऐसे मोहब्बत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाए जिसने मेरी और मेरे रसूल की इताअत की, इताअत से क्या मुराद है? जिसने मेरे और मेरे रसूल की बात मानी। मैं अपने लफ्जों में आपको समझाना चाहता हूँ अल्लाह क्या कह रहा है और अल्लाह के महबूब क्या कह रहे हैं, और मैं मेरी इताअत और मेरे महबूब की इताअत करो। मिलेगा क्या? उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन। और मैं क़यामत के दिन तो मेरी और मेरे महबूब की इताअत करके जब मैदान महशर में जाओगे, और मैं तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला इनाम ये अता फरमाएगा कि सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की जमात में खड़ा कर देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तशरीफ़ बिलादुन नबी, तशरीफ़ बिलादुन नबी। अब इताअत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर जो चीजें फर्ज की हैं उन्हें पूरा किया जाए, और फिर सरकार की सीरत का मुताला किया जाए, सरकार की बातें सुनकर उन पर अमल किया जाए। जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है।
आज हम इस दुनिया में जिंदा है ना, नेकियां कमाने का मौका मिल रहा है, वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा दुनिया को छोड़ के चला जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला से ये गुजारिश करेगा, अल्लाह मुझे चंद लम्हों के लिए वापस भेज दे, मैं 2 नफल ही जाके अदा कर रहा हूँ, शायद मेरी बात बन जाए। यानी आज वक्त है, सुभान अल्लाह की आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि वक्त मुख्तसर है। उलमा कसीर तादाद में तशरीफ फरमाए, अल्लाह इनका सया हमारे सर पर तादेर कायम दायम फरमाए। और जिन आप लोगों की वजह से हमारी रौनकें हैं, अल्लाह आपको भी आपकी दीन दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। अल्लाह आपके घरों पर करोड़ रहमतों बरकतों का नज़ूल अता फरमाए। और खुसूसन आज इसका शाना में हम तशरीफ फरमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें सारा साल अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल अता फरमाए। हाजी साहब और इनकी जुमला फैमिली की तमाम नेक हाजात को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बाखिर दावाया था कि मैं तमहीदी जुमला कहूँ, हालांकि मेरा दिल कर रहा है और मुहतरम अदनान भाई हाजी साहब इन जुमलों के हकदार हैं। जिस तरह हर साल की तरह हुजूर की मोहब्बत में अपने घर के अंदर खूबसूरत महफिल सजाई, जिस तरह फ़कीर मदीना अलहाज हाजी सुल्तान साहब और भाई हासिफ साहब ने एक मखसूस लबो लहजे और कफ़ियत के अंदर जिस तरह कलाम पेश किए, तमहीदी जुमले बनते हैं लेकिन वक्त नहीं, मोहब्बत से पढ़ लीजिए हुजूर की बारगाह के अंदर दुरूद व सलाम का नजराना। मैं इंशाअल्लाह अपने हाज़री के सिर्फ 3 शेर आपकी समातों की नज़र करूँगा और ये 3 शेर इंशाअल्लाह 3 शेर ही रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पंजाबी का एक खूबसूरत कलाम, लफ्ज़ों पे गौर कीजिए आप कि अल्लाह के महबूब की बारगाह में आशिकों ने कितने खूबसूरत कलाम अपनी मोहब्बतों के इजहार के लिए पेश किए। अल्लाह अल्लाह मेरे आका दा हौसला, अल्लाह अल्लाह मेरे आका दा हौसला, गालियां सुन के जो मुस्कुराता रे, अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे आका दा हौसला, गालियां सुन के जो मुस्कुराता रे, जावा कुर्बान में उसी दे इखला के तू, जावा कुर्बान में उसी दे इखला के तू, बैरियां नहीं जो कमली बिछाता। अल्लाह मेरे के विच नसीबा नहीं कोई मेरे नाल दा, है करम मेरे ते मेरे लजपाल दा, जिथे जिथे लिया कमली वाले तना, जाके अखियां ते मैनू बिठांदा रिया। अल्लाह अल्लाह मेरे आका दा हौसला, गालियां सुन के जो मुस्कुरांदा
تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور جمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور یہ نہ ہو ساقی تو پھر مہ بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی